السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، ایک نظر ہیڈ لائن پر۔ ظالم اسرائیل کی غزہ میں کارروائیاں جاری، امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ یو پی میں ایک اور مسلم طالبہ بھگوا لو ٹریپ کا شکار، پولیس تھانے میں درج ہوئی شکایت۔ یوگی راج کے طرز پر اب مہاراشٹر میں مسلم شناخت مٹانے کی کوششیں جاری، تاریخی شہر احمد نگر کا نام کر دیا گیا تبدیل۔ اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ بل پر صدر جمہوریہ نے لگائی مہر، ذیلی اصول بنانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل۔ الیکشن سے قبل بینک اکاؤنٹس فریز کرنے کے مودی سرکار کے فیصلے سے کانگریس پریشان، کھرگے نے پوچھا ایسی صورت میں غیر جانبدارانہ انتخاب کیسے ممکن؟ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری قتل عام کو جہاں دنیا انسانی بحران کا بہانہ بنانے میں مصروف ہے، تو دوسری جانب اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے کا عمل بے خوف جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کی پناہ گاہ بن چکے جنوبی شہر رفح میں فوجی کارروائی کے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رفح میں پناہ لیے ہوئے بے گھر 15 لاکھ فلسطینیوں کو وسطی غزہ میں پناہ حاصل کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اسرائیل کے چیف ملٹری ترجمان ڈینیل ہگاری نے بدھ کو کہا کہ شہریوں کو انسانی ہمدردی کے زون کی طرف بھیج دیا جائے گا، جہاں عارضی رہائش، خوراک، پانی اور دیگر ضروریات مہیا ہوں گی۔ ایک طرف انسانی ہمدردی زون کی بات کرنے والے اسرائیل نے آج پھر جنوبی غزہ میں امداد کے منتظر افراد کو نشانہ بناتے ہوئے 6 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 83 کو زخمی کر دیا ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کی اس کے اتحادی بھی مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مذمت کی حد سے کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ یورپی یونین نے اس بربریت پر کہا کہ یہ حملہ امداد کی تقسیم کو روکنے اور غزہ کی پٹی میں رہنے کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ وہیں ظالم اسرائیل کی جانب سے امدادی ٹرکوں کو روکنے کی وجہ سے دسیوں افراد اب تک بھوک کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ کئی موت کے دہانے پر ہیں۔ پورے غزہ پر قحط کا سایہ ہے اور عالمی ممالک اسرائیل کو سخت پیغام دینے میں اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اسی درمیان غزہ کے لیے سمندری راہداری کھولنے کے حوالے سے امریکی، یورپی، برطانوی، قبرصی، اماراتی اور قطری وزارتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے مصر، اردن اور اسرائیل کے راستے زمینی راستوں کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے سمندری راستوں سے زیادہ امداد پہنچانے کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ وہیں حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کے لیے بحری امداد کا راستہ ناکافی ہے۔ حماس کے ترجمان سلامہ معروف نے واضح کیا کہ جہاز کا سامان 1 یا 2 ٹرکوں سے زیادہ نہیں ہے اور اسے پہنچنے میں بھی کئی دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے بارے میں بھی کچھ لاجسٹک سوالات کے جوابات اب تک نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ سامان کیسے غزہ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ یہ قابض فوج کے معائنے کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ غزہ کے فلسطینیوں کے تئیں مغربی ممالک کتنے سنجیدہ ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ اب بھی کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بحیرہ احمر میں ہو رہے حوثیوں کے حملوں نے کئی مغربی ممالک کو فکر مند کر دیا ہے۔ اب 6 ممالک نے حوثی گروپ سے بحیرہ احمر میں اپنے حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ جبکہ یمن کے حوثیوں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیلی جارحیت ختم نہیں ہوتی، وہاں کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا اور امداد غزہ میں داخل نہیں ہو جاتی، وہ غزہ کی حمایت جاری رکھیں گے اور بحیرہ احمر میں ان کے حملے ہوتے رہیں گے۔ وہیں لبنان کے جنوبی شہر طائر کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے نزدیک اسرائیلی فوج نے ایک کار کو ڈرون حملے میں تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے 2 کارکنان جاں بحق ہو گئے۔ حماس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کار پر ڈرون حملے میں جاں بحق ہونے والے 2 نوجوان، ایک ہادی مصطفیٰ ان کا کارکن تھا، جبکہ ایک اور شخص بھی وہ جاں بحق ہو گیا ہے اور دیگر 2 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سڑک پر دوڑتی کار پر فضا سے کوئی چیز گری اور دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کے بعد کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ کار کے مکمل جلنے تک ڈرون اس کے اوپر منڈلاتا رہا۔ وہ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں ان کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہ ڈرون جو اس وقت وہاں موجود تھا وہ بھی اسرائیلی فوج نے ہی بھیجا تھا، حالانکہ اسرائیلی فوج نے اس حملے کی تردید یا تصدیق اب تک نہیں کی ہے۔ اتر پردیش میں ایک اور مسلم طالبہ بھگوا لو ٹریپ کا شکار بن گئی ہے اور اب اس معاملے میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔
बरेली में इंटरमीडिएट के एक मुस्लिम तालिबा को बहला फुसला कर उसका मजहब तब्दील कर दिया गया। मंदिर में शादी करने के बाद मुलजिम ने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और अब उसने मुतासिरा को बीवी मानने से इनकार कर दिया। मुतासिरा की शिकायत पर कलीदी मुलजिम महेश पांडे और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ बरेली के प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि महेश ने नवंबर 2022 में एक मंदिर में उसके माथे पर सिंदूर लगाकर हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक उससे शादी की थी और उसका नाम बदल दिया था। और जब उसने उसे बीवी के तौर पर अपने साथ रखने पर इसरार किया तो उसने उसे मारा और उसे रखने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकियाँ दी और इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन बात वही है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी निफाज की तरफ मज़ीद एक कदम बढ़ा दिया है। इस बिल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ ही अब उसने कानून की शक्ल ले ली है। कानून बनने के साथ ही ये रियासत में नाफिज ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी ये फ़आल नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड हुकूमत ने एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के लिए उसके उसूल और ज़ेरी उसूलों को बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। उसूल ज़वाबित तैयार करने के बाद उत्तराखंड हुकूमत के ज़रिए उसे पूरी रियासत में नाफिज कर दिया जाएगा। वहीं राम मंदिर तामीर और मुल्क में शहरियत तरमीम कानून CAA नाफिज किए जाने के बाद उत्तराखंड में UCC नाफिज करने की तरफ हुई पेशकदमी लोकसभा इंतखाबात से कबल BJP का बड़ा दाव तस्वूर किया जा रहा है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने आम इंतखाबात से ऐन कबल CAA नाफिज किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं और अब उत्तराखंड में UCC से मुताल्लिक सदर जमहूरिया की मिली मंजूरी के बाद BJP पर पोलराइजेशन की कोशिश का इल्ज़ाम लगना लाजमी है। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत ने जिस तरह मुस्लिम और उर्दू नाम को तब्दील करने का सिलसिला शुरू किया था, उसका असर BJP की हुक्मरानी वाली दूसरी रियासतों में भी बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। मुस्लिम शनाख्त वाली जगहों के नाम तब्दील करने के मामले में महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत भी लगातार योगी के नक्शे कदम पर चल रही है। औरंगाबाद, उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने के बाद अब एक और तारीखी शहर अहमदनगर का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 8 रेलवे स्टेशनों का नाम भी तब्दील किया गया है। शिंदे हुकूमत ने काबीना के फैसले में अहमदनगर शहर के नाम को तब्दील करते हुए उसका नाम अब पुण्यश्लोक अहल्या देवी नगर रखने का ऐलान किया है। उसके अलावा रियासती हुकूमत ने मुंबई के 8 लोकल रेलवे स्टेशनों के नामों को भी तब्दील करने का फैसला किया है। उन रेलवे स्टेशनों के नामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने के रखे हुए नाम थे। इससे पहले रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा था और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा था। वहीं लोकसभा इंतखाबात से पहले अहमदनगर का नाम तब्दील करना रियासत में एक सियासी मसला बन सकता है। वाज़ेह है कि अहमदनगर की तारीख बहुत पुरानी है। ये निज़ाम शाही सलातीन का दारुल हुकूमत भी रहा है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए CAA के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद एक बार फिर मुल्क भर में शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो रहे हैं। इस मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी इंसाफ पसंद तबका तशवीश का इजहार कर रहा है। बुनियादी तौर पर इस कानून में मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ पर तनकीद की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शहरियत तरमीम कानून पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर के एक तर्जुमान ने CAA को बुनियादी तौर पर इम्तियाज़ी नौइयत का और हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की ज़िम्मेदारियों की खिलाफत करार दिया। हमारे पार्टी का अकाउंट्स बंद कर दिए और इलेक्शन है। अब लोकसभा इंतखाबात से कबल जिस तरीके से कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, इस ताल्लुक़ से पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कुछ सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि पार्टी पैसे की कमी का सामना कर रही है और उससे इंतखाबी माहौल में मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जिन बैंक अकाउंट में लोगों के ज़रिए अतिया करदा पैसा रखा गया था, उसे BJP की क़यादत वाली NDA हुकूमत ने फ्रीज़ कर दिया है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब हमारे पास इंतखाब लड़ने के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर ये इंतखाब कैसे गैर जानिबदाराना रह जाएंगे। हमने जो डोनेशन कलेक्ट किए थे और हर पार्टी करती है, तो अब वो हमारे पार्टी का अकाउंट्स बंद कर दिए और इलेक्शन है, अब चल रहा है। अगर हमारे 200-300 करोड़ रुपए बंद कर दिए तो इलेक्शन कैसा करना। और उसके अलावा हमारा 4 अकाउंट है, यूथ कांग्रेस का उन्होंने सीज किया, बंद किया, महिला कांग्रेस का किया,
दिल्ली का किया, EICC का किया, हर अकाउंट अगर बंद करे तुम और बैंकों से चेक ऑनर नहीं करने दिए। वाज़ेह के कांग्रेस के सभी अकाउंट्स इनकम टैक्स महकमे ने फ्रीज कर दिए। यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी ने अपने पायलटों और कैबिन स्टाफ को रमज़ान का पूरा महीना परवाज़ों और सफ़र के दौरान रोज़ा न रखने का मशवरा दिया है। इस पाकिस्तानी एयरलाइन ने ऐसे मुलाजमीन को हिफाजती हिदायत पर पूरी तरह अमल करने की तलकीन भी की है। PIA ने अपने पायलटों और कैबिन स्टाफ को रोज़े की हालत में परवाज़ न करने का मशवरा देते हुए कहा है कि उससे न सिर्फ उनकी अपनी बल्कि किसी भी तैयारे में सवार मुसाफिरों और ज़मीन पर मौजूद दीगर अफराद की ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। ये हिदायत PIA के फ़्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरफ से दी गई हैं, जिन्होंने कॉकपिट और कैबिन में फ़राइज़ अंजाम देने वाले तमाम कारकुनों को एक सर्कुलर जारी किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ख़वातीन को इंसाफ की गारंटी देते हुए बुध को कहा कि अगर मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो गरीब ख़ानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात से कबल बड़ा दाव खेलते हुए नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया है, जो कि 5 स्कीमों पर मुश्तमिल है। पहली महालक्ष्मी गारंटी है, जिसके तहत गरीब ख़ानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। दूसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक की होगी, जिसके तहत मरकज़ी हुकूमत की नई तकर्रियों में ख़वातीन को निस्फ नुमाइंदगी मिलेगी। वहीं शक्ति का सम्मान तीसरी गारंटी है, जिसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की माहाना तनख्वाह में मरकज़ी हुकूमत की शराकत को दुगना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकार मैत्री चौथी गारंटी है, जिसके तहत ख़वातीन को उनके हुकूक से आगाह करने और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल यानी कि कानूनी मुआविन को अधिकारी मैत्री के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। ख़वातीन के लिए 5वीं गारंटी सावित्री बाई फुले हॉस्टल गारंटी है, जिसके तहत कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर मुल्क भर के तमाम ज़िली हेडक्वार्टरों में कम अज़ कम एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाया जाएगा और मुल्क भर में उन हॉस्टलों की तादाद 2 गुनी की जाएगी। कांग्रेस सदर ने साथ ही कहा कि हमारी गारंटियाँ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि पत्थर की लकीर हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था, तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनके मुल्क के शहरी जो इसराइली मुसल्लह अफ़वाज में शामिल हैं या गज़ा में इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उन्हें वतन वापस आने पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत में इसराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात लगाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान दरार मज़ीद गहरी हो गई है। ये वादे नहीं कि गज़ा की मौजूदा जंग के दौरान कितने जनूबी अफ्रीकी शहरी इसराइल के लिए लड़ चुके हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका में तकरीबन 70,000 अफराद की काबिल ज़िक्र यहूदी आबादी मौजूद है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत मौजूदा जंग से पहले ही फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायती रही है और इसराइल की नाक़िद रही है। सऊदी अरब में अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के एक रुकन रब्बी इब्राहिम कोपर को यहूदी टोपी उतारे बगैर दरिया गेट में दाखिल होने से रोक दिया गया था, जिस पर वफ़द ने एहतिजाज करते हुए दौरा मनसूख कर दिया है। वहीं सऊदी सफारत खाने की जानिब से एक बयान में वजाहत दी गई है कि वाक़या दाखिली प्रोटोकॉल की गलतफहमी की बिना पर पेश आया, जिस पर सफ़ीर ने अमरीकी कमीशन के वफ़द से ज़ाती तौर पर बात भी की थी। सऊदी सफारत खाने की वेबसाइट पर जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि सफ़ीर की बातचीत के बाद से मामला हल हो गया था, लेकिन वो वफ़द के दौरा मनसूख करने के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।